Good morning, dear students. In this session, we are going to understand four very important concepts related to accounting treatment of goodwill on the admission of partner. And this is going to be a very, very important session because here we are going to cover up some higher order thinking skill based questions and such concepts which are very common in the examinations. So we start with our first concept. The concept one says when goodwill account when goodwill account already appears in the books already appears or exists in the books of the firm. When he's talking about books means balance sheet. Okay, in the books means balance sheet of the firm. Now the question arises कि बैलेंस शीट में गुडविल कैसे आ सकती है. According to AS26, dear students, AS26 Accounting Standard 26 says that goodwill can be shown in the books of accounts if it is paid for. Means if we are paying for goodwill when we are buying a business, at that time अगर हम कुछ extra payment करते हैं, when the purchase consideration gets settled, at that time अगर हम कुछ extra payment करते हैं to the vendor of the business, in that situation goodwill books में हमारी एग्जिस्ट कर जाती है. तो गुडविल बुक्स में क्यों आती है? व्हेन इट इज पेड फॉर. अच्छा, जब कभी भी गुडविल बुक्स में होगी ऑलरेडी, तो उसको क्या करना कंपल्सरी है? राइट ऑफ. एंड व्हाट जर्नल एंट्री डू वी पास? When it is the old goodwill which is already existing in the books, so always remember it needs to be written off. Means old goodwill को हम बुक से रिमूव कर देते हैं. तो एंट्री याद रखिएगा इसकी क्या आती है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ. बीइंग goodwill which is already existing in the books is written off. So this is the very very simple entry when goodwill which is existing in the books is to be written off from the books. And what else we have to remember while writing off? Always and always apply what ratio? Old ratio. Because admission of a partner में sacrificing ratio is applicable जब हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट. ओनली एंड ओनली एट दैट टाइम वी अप्लाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो. रेस्ट वी अप्लाई ओल्ड रेशियो. ओके. सो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करने में यूज होता है सैक्रिफाइसिंग, और ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ गुडविल, क्योंकि विड्रॉ वही कर सकते हैं जिन्होंने गुडविल को रिसीव किया था, और रिसीव कौन करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. सो गुडविल अगर बुक्स में होगी तो कंपल्सरीली वी हैव टू राइट इट ऑफ. दिस इज द कॉन्सेप्ट वन of the day which you have to remember, right? So this is number one concept, and we do the next concept now. The next concept, the next case you can say of goodwill is what? When a new partner when a new partner brings goodwill in cash, brings premium for goodwill in cash, in cash, which is to be withdrawn by partners, which is to be withdrawn by partners. Ab, what is the difference between this case and the case we did in the last class, which is to be retained in the business wala? So which is to be withdrawn by partners. Which partners can withdraw? Just now I told you, the partners who have received the goodwill, यानी कि sacrificing partners. तो अगर पार्टनर कैश में गुडविल लाया है तो क्या एंट्री आएगी? पहले पहले गुडविल को हम रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. और अगर कैपिटल लाए होंगे तो टू न्यू पार्टनर कैपिटल भी आता है. बट राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल
एंड प्रीमियम जैसे ही हमारे को रिसीव होता है, इट इज कंपल्सरी मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू डिस्ट्रीब्यूट। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल होता है जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाए? हु डिजर्व टू रिसीव गुडविल? द ओल्ड पार्टनर्स और द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ओनली? ये अब आपको बताना होगा। यस, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, नॉट ओल्ड पार्टनर्स। ये हम एंट्री से कंसेप्ट में सीखेंगे, तब हमें एग्जाम में भी याद रहेगा दैट वी नीड टू ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर यही वो एरिया है जहां पर कि हमारा कौन सा रेशो एप्लीकेबल होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला। तो यहां तक तो आप लोगों को पहले से ही पता था कि गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को लाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बट यहां पर जो उसने नया कंसेप्ट आपसे बोला है, विड्रॉन, तो अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स चाहें तो इस गुडविल को विड्रॉ भी कर सकते हैं इफ दे विश टू डू सो। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, sacrificing partners capital account debit to cash account or to bank account. Please remember that it can be withdrawn like this. तो अगर वो जाएं और अपना बैंक से पैसा विड्रॉ करें या बिजनेस से विड्रॉ करें, तो दिस इज द एंट्री ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। विड्रॉन की एंट्री हमारी बहुत वीक होती है क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन तक तो बहुत प्रैक्टिस मिलती है, बट विड्रॉन की प्रैक्टिस कम मिलती है। तो दैट इज वाई वी हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर भी हमारा कौन सा रेशो लगेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन द सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि जहां पर भी कहीं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आएंगे वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो लगती है। एज सिंपल एज दैट टू रिमेंबर इन द एग्जामिनेशन। तो गुडविल विड्रॉ वही लोग कर सकते हैं जो गुडविल के रेसिपिएंट्स हैं। तो गुडविल के रेसिपिएंट कौन है? इट इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, राइट? तो 3 एंट्रीज विल बी पास्ड इन द केस ऑफ sacrifice, right? Next concept in this session we are going to cover up is when goodwill is brought in kind. When premium for goodwill, when premium for goodwill, when premium for goodwill is brought in kind. What is this in kind? Sometimes it so happen कि जो न्यू पार्टनर होता है उसके पास अमाउंट नहीं होता पे करने के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो ही कैन ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड। काइंड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग कैश, sacrificing partners of the firm can agree to, if they agree to get the premium for goodwill in kind, तो in that situation हमें premium for goodwill kind में भी मिल सकता है, तो in the form of assets. So instead of cash, students, we used to pass entry cash account debit to premium for goodwill. So instead of cash, we write asset account debit. अब asset का जो भी नाम given होगा, right now to understand we are writing sundry asset, miscellaneous, any asset can be brought to get the goodwill. So sundry assets account debit to premium for goodwill account. Simple and easy journal entry. We pass sundry assets account debit to premium for goodwill. तो अगर वो मशीन लेकर आया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। इफ यू हैज ब्रॉट डेटर्स तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। इफ यू हैज ब्रॉट 3 एसेट्स, डेटर्स, मशीन एंड स्टॉक, तो डेटर, मशीन, स्टॉक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इट कैन बी एनी वेज। तो पार्टनर एक एसेट भी ला सकता है गुडविल के तौर पर, और पार्टनर कैन ब्रिंग मल्टीपल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। लेकिन अगर प्रीमियम कैश में आए या काइंड में आए, बट इट नीड्स टू बी, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लाए या काइंड में लेकर आए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विच पार्टनर्स? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल जब डेबिट करते हैं तो इट गेट्स क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ और करंट अकाउंट्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। यस, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी राइट करंट अकाउंट्स। दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल इन विच रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके, सो
if the new partner brings goodwill in kind means instead of bringing in the form of cash, तो कैश वर्ड हटाकर वहां पर एसेट का नाम आ जाएगा. इट कैन बी वन एसेट, इट कैन बी टू एसेट्स और इट कैन बी मल्टीपल एसेट्स. ओके. एंड इट कैन बी विड्रॉन ऑल्सो. अगर विड्रॉ करेंगे तो वही एंट्री आएगी जो हमने पहले करी थी, ये वाली एंट्री. व्हाट इज दिस एंट्री? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश. अब वो कैश में लाया नहीं, बट दे कैन विड्रॉ इट फ्रॉम द फर्म. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. ओके. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. हालांकि हम क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके. और आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपने सीखना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, so I must say this is the most important thing which every student must know very well. Conceptually, you should be very clear in the last case. When a new partner, ये कोई केस नहीं है, एक सिचुएशन है. दिस इज वन सिचुएशन आई कैन से. Rather than calling one concept, I can say it is one situation. Okay. क्योंकि situations can be many. So this is another situation when a new partner brings goodwill in cash, brings premium for goodwill in cash, brings premium for goodwill in cash, which is to be retained in the business. तो ये तो आप कहेंगे हमने पहले ही कर रखा है, cash to premium and premium to sacrificing partners, which is to be retained in the business. Okay. This is the simple journal entry which we pass. बट इसमें एक सिचुएशन हम जोड़ रहे हैं. When an old partner, any of the old partner, it can be one partner or many partners, when an old partner gains instead of sacrifice. भाई ओल्ड पार्टनर तो यूजुअली जब न्यू पार्टनर को एडमिट करता है तो ही और शी ऑलवेज sacrifices to accommodate a new partner. So in order to accommodate a new partner हम तो sacrifice करते हैं हमेशा. बट इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस अगर किसी ओल्ड पार्टनर का गेन आ जाए, इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस वी गेट द गेन. तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द लास्ट सिचुएशन, which is said to be higher order thinking skill based situation and very very common in the examinations. तो हमें स्टूडेंट्स सिंपल अपना रूल याद रखना है. सबसे पहले तो गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको रिसीव करेंगे, दैट विल बी द सिंपल जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. क्विकली हम इस एंट्री को सिंपली पास कर लेंगे. और प्रीमियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल जब क्रेडिट होगा तो इट मस्ट बी डेबिटेड विद द सेम अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. और डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है ये? अमंग द sacrificing partners. तो यहां तक तो आप बोलेंगे कि सर इट इज एब्सोल्युटली सेम what we have been doing right from the beginning of this chapter. The premium for goodwill to sacrificing partners capital or current account in case of fixed capital. Acha. Now we should understand if any of the old partners sacrifice gains instead of sacrifice. तो उस सिचुएशन में he will also compensate. मतलब what does it mean? Suppose there are two partners, A and B, and C is joining. So we usually see कि A और B sacrificing होते हैं C के लिए. But in this situation, suppose A is the sacrificing partner, but B gains. B किसका गेन करता है? A से गेन कर लेता है शेयर. तो यानी कि A का सेक्रीफाइस दो लोगों के लिए हो गया. वन फॉर C टू ब्रिंग न्यू पर्सन इन, और दूसरा जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे he has also taken over the share of A. So A has given his share to two persons, means C को उसने सेक्रीफाइस करा बिजनेस में एंटर कराने के लिए, और जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर, उन्होंने भी बी का शेयर ए का शेयर गेन कर लिया. तो ए इज द बिग सेक्रीफाइसिंग पर्सन. इन दिस सिचुएशन this gaining person, the person who is gaining, Mr. B, it becomes his responsibility कि he should sacrifice to whom, जिससे उसने
जिसका शेयर उसने गेन किया है। तो बी हैज टू कंपनसेट टू विच पार्टनर? द पार्टनर बी मीन्स गेनिंग पार्टनर। आई शुड नॉट राइट बी, आई शुड राइट गेनिंग पार्टनर। सो गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे ऑफ करेगा, कंपनसेट करेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो पूरा ए को मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ ही विल गेट द कंपनसेशन फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपको याद रखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जिसके लिए कौन एलिजिबल है? ए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ही वो बिजनेस में। बट बी जिसने गेन किया है, ही विल ऑल्सो कंपनसेट टू sacrificing partner A. So A will get two amounts, one from the new partner which he brought as goodwill, and second the compensation which B has to pay to A for the gain made by him out of A's share. तो अगर किसी भी ओल्ड पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ जाए तो ही हैज टू कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज वेल। एंड नरेशन हमारी सेम ही रहती है, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड विच यू हैव बीन डूइंग, being premium distributed or credited to sacrificing partner। अब यहां पर जो क्रेडिट मिलेगा उसको दो मिलेगा, एक पूरी गुडविल उसको मिलेगी जो कि न्यू पार्टनर लेकर आए हैं, साथ के साथ उसको मिलेगा गेनिंग पार्टनर का कॉम्पनसेशन। सो इन दिस सिचुएशन टू अमाउंट्स आर गिवन टू sacrificing partner, one premium, one compensation from the gaining partner। बड़ी अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको डील करना है एग्जामिनेशन में, राइट? तो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। तो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस टिल नाउ, फोर केसेस। फर्स्ट, अगर ओल्ड पार्टनर्स ये देखें कि ऑन द डे ऑफ एडमिशन अगर कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में, तो उस गुडविल को क्या करना है? कंपल्सरीली राइट ऑफ। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। और अगर पार्टनर गुडविल लाए और उसको विड्रॉ कर लिया जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू कैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द थर्ड एंट्री। और यहां पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशो लगती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, यूजुअली हमें याद नहीं रहता है, तो डू रिमेंबर। एंड इफ अ पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, तो काइंड के केस में इंस्टेड ऑफ कैश टू प्रीमियम वी राइट एसेट्स टू प्रीमियम, और प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर वो विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ की एंट्री वैसे ही करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट 2 में सीखी थी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। और अगर कोई पार्टनर गेन कर ले इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस, कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर अगर गेन करता है, उस सिचुएशन में हमें गेनिंग पार्टनर ढूंढना होता है कि किसने गेन किया है, वो कॉम्पनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग को, और सैक्रिफाइसिंग को प्रीमियम तो मिल ही रहा होता है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेट्स टू अमाउंट्स, वन प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अनदर compensation from the gaining partner, right? So keeping in mind all these things, let us begin the exercise given on page number 4.97 in your book. And if you look into the question, there are some important questions, very very important questions given on this page. If I see question number 25, there is a question, Ayush and Arushi। देखिएगा नेम भी बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, so we have to be very particular। In the ratio of 3:2, they admitted Naveen into the partnership for 1/4 share. Goodwill of the firm was to be valued at 3-year purchase of सुपर एवरेज नेट प्रॉफिट्स, यानी कि पहले गुडविल हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 20,000, तो हमें एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 20,000 और गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वाज 50,000, 50,000 का हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय नवीन। बताइए न्यू पार्टनर जो नवीन हमारे एडमिशन हुए हैं वो कितनी गुडविल लेकर आएंगे, राइट? तो पहले हम गुडविल निकालेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट व्हाट, विल बी कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में तो कोई गुडविल की एंट्री हमें करनी नहीं है, ये तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, but we must know how to solve these questions। So if I show you the solution of this question, you will simply say what is the formula
of calculating goodwill by super profit method? Goodwill is equals to super profit multiplied by what? Super profit multiplied by what? Number of years परचेज करते हैं. ये हमारा फॉर्मूला है which we have done in the chapter 2, super profit multiplied by number of year purchase. And what is the formula of super profits? सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से वी विल गेट द सुपर प्रॉफिट. ओके, सो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए. एवरेज प्रॉफिट फटाफट क्वेश्चन में देखो कितना लिखा है, 20,000. नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है. नॉर्मल वी हैव टू कैलकुलेट बिकॉज एवरेज इज गिवन. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस या कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. सो नॉर्मल, ये आपको चैप्टर 2 का भी रिवीजन आपको इसमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज समटाइम्स वी फॉरगेट द फॉर्मूलाज. सो प्लीज रिमेंबर गुडविल का कॉन्सेप्ट तो पूरी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं तक भी आ सकता है हमारा, एक्सेप्ट डिसोल्यूशन. सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है क्वेश्चन में? 50,000. और उसका कितना परसेंट हमारे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है? 10%. सो इफ आई कैलकुलेट इट इज कमिंग अप टू बी 5,000 रुपीज. ओके, सो सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 20,000. हमको एवरेज प्रॉफिट गिवन था, 5,000 का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमें, तो 15,000 इज द सुपर प्रॉफिट. सिंपल. एंड गुडविल को वैल्यूट करना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स पर. तो आप बोलेंगे कि 15,000 की हमारी ये गुडविल सुपर प्रॉफिट निकला है और 3 ईयर परचेज हमसे ये कह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड 45,000. व्हाट इज 3 ईयर परचेज? 3 ईयर परचेज मींस हाउ मेनी ईयर्स द फर्म कैन मेंटेन or retain these profits, the super profits, expected number of years. Okay, सो दिस इज कॉल्ड 45,000 फर्म की गुडविल. ये गुडविल ऑफ द क्या निकली है? फर्म. अब गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाल दिया है. आफ्टर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ द फर्म वी कैन नाउ कैलकुलेट द शेयर ऑफ नवीन. बस यही हमें निकालना था. 3 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में आया है 2023 में. तो 45,000 में से नवीन का शेयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में चिल्ड्रन? इट इज गिवन 1/4. सो 1/4 इफ आई कैलकुलेट 11 for the 44, 250. So 11,250 is the share of the new partner and goodwill of the firm is 45,000. अगर एंट्री करने को आती तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते आयुष एंड आयुषी में. तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू आयुषी एंट्री होनी चाहिए थी इसकी. डन, सिंपल, इजी टू सॉल्व. नेक्स्ट 26th विल लुक इनटू 25th क्वेश्चन क्विकली. एंड हम देखेंगे कि ये अगर सेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बिलीव इट स्टूडेंट्स, यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. So we look into the question. They admit C into partnership for 1/5 share. A and B partners हैं. Profit sharing ratio 3:2 है इनका. C brings 30,000 capital लाते हैं and 10,000 as goodwill. तो 30 capital, 10,000 goodwill. Total cash कितना लेकर आए? 40,000. Immediately mind makeup करिए अपना. At the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet. देखिए मैंने बताया था goodwill appeared in the books या goodwill exist in the books. Books means balance sheet of A and B. कितना रुपीज है? 3,000. So when the goodwill is existing in the books, तो हमारे क्वेश्चन की बिगनिंग भी वहीं से होगी कि इसको क्या करना है? कंपल्सरीली राइट ऑफ. एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म विल बी 5:3:2. यानी कि न्यू रेशियो हमें गिवन है. एंड वी नो वेरी वेल व्हेन एवर न्यू रेशियो इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एब्सोल्युटली राइट. तो क्वेश्चन की बिगिनिंग हम वहीं से करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे अपना एक वर्किंग नोट में, सो दैट वी शुड नो कि इन विच रेशियो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो ए और बी का हमें निकालना है. क्विकली वी कैलकुलेट. फॉर्मूला हमें सबको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है. ओल्ड रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन 3/5, जिसमें से हम माइनस करेंगे न्यू रेशियो, दैट इज 3/8. सॉरी, 5:3:2 is the new ratio. So 5:3:2 is the new ratio. Old ratio is 3:2. So 5/10. Okay.
5/10 and 3/10. If you calculate the answer, children, you will find 6 minus 5, that is 1/10. And here, if you calculate 2 to the 4 minus 3, it is 1/10. देख सकते हैं आप कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो अलग अलग हो चुके हैं अब. डू नॉट कंसीडर कि ओल्ड रेशो विल बिकम द सेक्रीफाइसिंग रेशो, स्पेशली जहां पर न्यू रेशो गिवन हो या कोई पॉइंट दे रखा हो रेशो से रिलेटेड. तो 1:1 इज द सेक्रीफाइसिंग. इसी रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को. नाउ वी स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. राइट. सो जर्नल एंट्रीज करने के लिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, गुडविल को राइट ऑफ करने वाला. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री, क्योंकि गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है वो ओल्ड पार्टनर्स की होती है, ओल्ड फॉर्म की होती है, उसमें न्यू पार्टनर का कोई कंसर्न नहीं होता, कोई सेक्रीफाइस का कंसेप्ट नहीं लगता. व्हाट वी डू, वी ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स. तो कंपल्सरीली गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ. एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल. और नरेशन हमारी क्या आएगी, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ. वेरी नाइस. और कौन सी रेशो लगेगी, विच रेशो विल बी एप्लीकेबल हियर स्टूडेंट्स. 3000 की गुडविल आपको बुक्स में दे रखी है, इसको राइट ऑफ कर देंगे 3:2 में. सो 1800 एंड 1200. ओके. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको. राइट. सेकेंड एंट्री विल बी, पार्टनर कैश लेकर आया प्रीमियम का, तो कैश अकाउंट डेबिट, या फिर आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट. तो कैश अकाउंट डेबिट. पार्टनर हमारा जो न्यू पार्टनर है, ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम. तो बोथ द अमाउंट ही इज ब्रिंगिंग. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. राइट. Look, I never write PFG or any other short form GW, especially when you are doing the journal entry. So that same pattern you have to follow in the examination. 30,000 rupees capital he brought, 10,000 rupees premium he brought, and total money he brought was 40,000 rupees. And the same 10,000 which he brought as premium will be distributed among partners. Ab now do not forget in which ratio we have to distribute. That is the मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एग्जामिनेशन, कि आप यहां पर ओल्ड रेशो ना लगा दें गलती से भी, कि सर वी आर टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स तो लेट अस अप्लाई ओल्ड रेशो. योर ऑल हार्ड वर्क, योर ऑल एफर्ट्स विल गो वेस्ट. वाई. 10,000 को कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यस, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आई थी हमारी, इक्वल. एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन दिस. तो व्हाट विल बी द नरेशन, बीइंग premium distributed between sacrificing partners. So यहाँ पर being capital and premium brought in cash, capital and premium brought in by C, by the new partner, and being premium for goodwill distribute. Okay, this is how you can get the correct answer, being premium for goodwill distributed or credited in the sacrificing partner's capital. तो सिंपल क्वेश्चन था, विच यू हैव अंडरस्टूड, आई एम श्योर वेरी वेल. गलती नहीं होगी एग्जाम में. दीज आर वेरी कॉमन पॉइंट्स, बट यस, रेशो में या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो जाती है, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके. नेक्स्ट वी डू, that is question number 29, because if I look into the book, I feel that you should know how to handle the case of premium withdrawn by the partners fully or partly. यानी कि जो पार्टनर गुडविल रिसीव करते हैं सैक्रिफाइसिंग, वो चाहे तो फुल अमाउंट विड्रॉ कर लें, एंड इफ दे विश तो दे कैन विड्रॉ सम लेसर अमाउंट व्हाट दे हैव रिसीव. तो विड्रॉ वाले कॉन्सेप्ट पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm business and sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3. This is the old ratio. On 1st April 24, capitals given है हमको 8,000 and 10,000 at the beginning of the year. Now, on that date, they admit C and give him 1/4 share. This is the share of the new partner. C brings 8,000 rupees as capital partner. Capital लेकर आए हैं.
एंड ₹6,000 एज गुडविल, पार्टनर गुडविल भी लाए हैं. द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश. देखिए, कंफ्यूज करने के लिए इसने आपको दे दिया कि विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. बच्चा कहेगा कि गुडविल तो ओल्ड पार्टनर से विड्रॉ करते हैं, बट नॉर्मली इट्स सो हैपन दैट इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. सो सर, विड्रॉ वाला पॉइंट आ चुका है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. Pass the journal entries and show the capital account of the partners. Calculate proportion in which partners will share profits and losses in future. तो इसमें आपसे कैपिटल अकाउंट भी उसने पूछा है. गुड क्वेश्चन ऑफ 3 to 4 मार्क्स, जहां कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया, सो दैट यू शुड नो हाउ टू पोस्ट. You should know how to post the entries. And last, calculate proportion means new ratio भी पूछा है. So a very good question, children, of the topic. It is premium for goodwill withdrawn, ताकि आपको ज़्यादा डीपली समझ में आए. So in your book, it is a good question mentioned. So very very important question of premium for goodwill का withdrawn. Every teacher wants कि बच्चों को premium for goodwill withdrawn वाला concept बहुत अच्छा आना चाहिए. So it is only possible when you will solve these questions. So 29 question of the book आप इसमें देख सकते हो. इसमें एक तो रेशो पूछी है, न्यू रेशो निकालना तो सभी को आता है. दैट आई डोंट थिंक यू नीड टू हैव एनी सपोर्ट कि ओल्ड रेशो गिवन है 1:2 एंड न्यू पार्टनर आते हैं 1/3 शेयर के लिए. तो हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो, दैट यू ऑल नो वेरी वेल. आई डोंट थिंक यू नीड एनी सपोर्ट, बिकॉज 1 में से अगर 1/3 दे दिया आपने, पूरी फर्म के शेयर को हम 1 मानते हैं. क्विकली आई एम जस्ट वर्किंग आउट. तो 2/3 इज द रिमेनिंग फर्म का शेयर. इस 2/3 रिमेनिंग फर्म के शेयर को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी में. तो ए अपने शेयर के अकॉर्डिंग, ए का शेयर था 1/3, 1/3 ही विल टेक फ्रॉम दिस रिमेनिंग फर्म का शेयर. ओके, तो ये जो 1 -1/3 बचा है, दैट इज रिमेनिंग फर्म का शेयर. ओके, क्योंकि पूरी फर्म का शेयर हम कितना मानते हैं, 1. सो इट इज कमिंग 2/6. एंड बी का अगर हम देखें, तो ही इज एलिजिबल टू गेट 2/3 ऑफ 2/3. दैट मीन्स 9 it is, I'm sorry. तो 4/9, 2/9, 4/9, एंड लास्ट पार्टनर का आ रहा है 1/3. तो 1/3 into 3/3. 1/3. On this date, they admit C for 1/4 share of profit. Clearly mentioned है क्वेश्चन के अंदर. So 1/4 के लिए पार्टनर इज ज्वाइनिंग. I'm sorry, I could not see to it. So instead of this, we will be doing in a different manner. So बड़ा ही अलर्टनेस की ज़रूरत है यहाँ पर हमको. यहाँ 1/4 था, तो रिमेनिंग फर्म का शेयर कितना बचेगा, 1 - 1/4 करके 3/4, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में. 1/3 into 3/4 एंड 2/3 into 3/4, एंड लास्ट पार्टनर का हमारा आ जाएगा 1/4. सो इट इज 3/12, इट इज 6/12, एंड इसको 12 करने के लिए 3/3 कर देंगे, तो 3/12. तो 3:6:3 इज द आंसर, विच विल बी 1:2:1. न्यू रेशो आ जाएगा. तो न्यू रेशो तो सिंपली आपने जानते ही थे, नॉट अ बिग डील. बट what we have to learn in this is premium का withdrawal वाला concept. Quickly we understand cash account debit to which partner is admitting, it is C. So partner is bringing some capital as well as premium. Cash account debit to C's capital, premium for goodwill. Right? Be very careful while reading the question. Look, I have to store in mind everything, then only I do it. So please be very careful. 8,000 rupees capital, and how much is the premium for goodwill? 6,000. तो टोटल हो गया हमारा कितना, 14,000. राइट, बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश. लिख लीजिएगा नरेशन. और सेकंड एंट्री और उसकी नरेशन क्या आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विच पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए एंड बी. अगर क्वेश्चन में कोई रेशो में ट्विस्ट ना हो, न्यू रेशो नहीं हो, तो ओल्ड रेशो को ही आप सैक्रिफाइसिंग मानकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 6,000 को.
which is 1/3 and 2/3, so that means 2000 and 4000. और वैसे भी अगर आप उसको निकाल कर भी देखोगे तो वो वही निकल कर आती है व्हाट दे हैव बीन शेयरिंग एज ओल्ड। देखिए यहाँ पर न्यू रेशो निकल कर आ गई थी आपकी। यहाँ तो आपके पास एग्जाम्पल भी है बिकॉज सॉल्व है आपके पास। तो अगर हम ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो चेक भी कर लें एक बार कि सर आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म इट, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जैसा कि आप जानते हो ओल्ड माइनस न्यू रेशो होता है। ओल्ड रेशो हमको क्लियरली गिवन है 1/3 एंड 2/3, और न्यू रेशो गिवन हमारी आ गई है 1/4 एंड 2/4 विच वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। तो 12, 4 minus 3, 1/12, and 12, 8 minus 6, 2/12। तो 1:2 ही आ रही है सेक्रीफाइसिंग, अगर हमने कैलकुलेट भी करके देखा, जो कि क्या थी इनकी ओल्ड रेशो भी थी। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स यू कैन नाउ जज दैट ओल्ड एंड सेक्रीफाइस आर द सेम इफ देयर इज नो न्यू रेशो। बट न्यू रेशो गिवन है तो वहां पर तो बड़े अलर्टनेस की जरूरत है दैट यू नीड टू कैलकुलेट द आंसर प्रॉपरली। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, तो व्हाट एंट्री हैव आई एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। अब देखिए यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके माइंड से निकल गया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिनको गुडविल मिली उनको वापस डेबिट कर दो, और गुडविल को विड्रॉ करा उन्होंने कैश से, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू प्रीमियम वी राइट कैश। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। अब यहाँ पर ये आ जाता है कई बार कि हाफ अमाउंट विड्रॉ करा या 25% विड्रॉ करा, तो इससे घबराना नहीं है। विड्रॉ वो कितना भी करे एंट्री सेम ही रहती है। ओके, सो इफ दे हैव विड्रॉन द होल अमाउंट वी विल राइट 6000, एंड 2000 रुपये ए विल विड्रॉ, 4000 रुपीज बी विल विड्रॉ। और अगर वो बोलता कि हाफ द गुडविल दे हैव विड्रॉन, तो जितना मिला था 2000 का हाफ कितना होता 1, और 4000 का हाफ कितना होता 2000, और यहाँ पर कितना आ जाता 3000 अगर वो हाफ विड्रॉ करता। और अगर वो 1/4 गुडविल विड्रॉ करता तो 1/4 मीन्स इसको हम 500 कर देते, इसको हम 500 कर देते, राइट, इसको 250 कर देते 1/4 दैट इज 25%, इसको 500 कर देते, और ये कितना आता 750। तो पार्टनर का अपना विश है कि वो कितना विड्रॉ करें, वो चाहे तो पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लें, वो चाहे तो पार्शियली विड्रॉ कर लें, इट कैन बी देयर चॉइस। बट रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर ऑलवेज वन पॉइंट, एग्जामिनेशन में ट्विस्ट होने के चांस अगर हो गए तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो लगती है और विड्रॉल में भी सेक्रीफाइसिंग रेशो ही लगती है। बोथ द केसेस सेक्रीफाइसिंग रेशो इज एप्लीकेबल। सपोज करिएगा एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा होता तो एक ही पार्टनर को गुडविल मिलती और एक अकेला पार्टनर ए ही विड्रॉ करता, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज टू पार्टनर्स आएंगे। ओके, नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू प्रिपेयर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको आना तो चाहिए, though it is little time consuming, it will just increase the size of my session, but I don't want to miss the opportunity to explain how to post in the partners capital account। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कैसे पोस्ट करेंगे, एक छोटा सा आपको हिंट दे देते हैं, हाउ टू मेक द पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड हाउ टू प्रेजेंट इट। राइट, you know very well how to prepare partners capital account, and in the partners capital account of Mr. A, B and C we will be posting these three ledgers। so now सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं बैलेंस, जो उनके कैपिटल्स हमारे पास हैं। ए का कैपिटल हमें क्लियरली गिवन है 8000 and 10000, दीज आर द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। और साथ में उसके बाद वो पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, ही इज ब्रिंगिंग कैश इनटू द बिजनेस, यानी कि न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है। कैपिटल इज ब्रिंगिंग 8000 जिसको कि हमने विड्रॉ किया है, फिर प्रीमियम भी लेकर आ रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर्स को मिला, उसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको हम विड्रॉ कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। हाउ मच गुडविल ही ब्रॉट 6000, जिसको हमने कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था 2000 and 4000। लुक, दिस इज हाउ प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और विड्रॉ के लिए
कैपिटल कम कर देगा तो इट विल बी ऑन द विच साइड, डेबिट साइड. Premium withdrawal always comes on the debit side. Withdrawal of premium. Withdrawal of premium. We will be showing it on the debit side of the account. ये बड़ा ही important learning है आपके लिए आज की कि the premium is always shown on the debit side when it is withdrawn. तो A और B ने ही withdraw किया है, तो they both will take out the goodwill from the capitals, 2000 and 4000 rupees. Okay, and then after that we'll make the totals. Totals will be A ka 10,000, B ka it is 14,000, and Mr. C will remain at 8 what he brought as capital. Okay, so 10, 14 and 8. So 10, 14 and 8,000. अब हम निकाल देंगे इनका बैलेंस, कैरी डाउन. द बैलेंस इज लेफ्ट इन देयर कैपिटल अकाउंट्स विच आर 10 minus 2 8, 14 minus 4 10, यानी कि जो कैपिटल शुरू में था वहीं पर ही ये लोग आ चुके हैं वापस, बिकॉज जो प्रीमियम मिला है इन्हें एक्स्ट्रा, दैट दे हैव विड्रॉन. सो 8, 10, 8 विल बी द आंसर ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बहुत ही आसान है, बट जो लर्निंग आपकी इसमें हुई है वो यही है कि जब पार्टनर गुडविल विड्रॉ करता है तो एंट्री कम्स ऑन द विच साइड, डेबिट साइड. दिस यू हैव टू रिमेंबर. गुडविल का विड्रॉन कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट. Quickly we proceed toward the next question. It is the question number 28. एक कॉन्सेप्ट और है आपका इसमें भी. So Ram and Mohan are partners sharing profit in the ratio of 3:2. This is premium for goodwill brought in kind. Partner के पास कैश नहीं है लाने के लिए. Instead of cash, the new partner can bring assets. Kind means any asset, any other asset other than cash. So they admit Sohan as a partner for 1/4 share. New partner का share 1/4 है. And Sohan is contributing following assets towards his capital and his goodwill. तो कैपिटल और गुडविल सब कुछ वो किस फॉर्म में ला रहा है, काइंड में ला रहा है. चिल्ड्रन प्लीज मार्क इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ही इज ब्रिंगिंग स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 lakh and plant and machinery 40,000 rupees. So this is an important concept. हमारे पास 4 एसेट लेकर आया, स्टॉक भी लाया, डेटर भी लाया है, लैंड भी लाया है और मशीन भी लाया. तो 60 plus 80 140 and 1 lakh it is 240 and 40 it is how much, 2,80,000. तो 2,80,000 रुपए के एसेट्स लाए. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ सोहन, गुडविल फॉर्म की हमें निकाल कर दे रखी है 6 लाख. इससे हमें पता चल जाएगा कि सोहन की गुडविल कितनी लानी थी, राइट. तो 2,80,000, 40 plus 1 lakh plus 80 and 60, 280. तो 2,80,000 में उसमें कैपिटल भी है और गुडविल भी है. एंड बोलता है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल फॉर्म की दे रखी है 6 लाख. पास इन जर्नल एंट्रीज ऑन सोन्स एडमिशन. इफ पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ गुडविल, इफ पार्टनर विड्रॉ हाउ मच गुडविल, हाफ. देखिएगा पार्टनर कैश में नहीं लाया, मगर इवन देन पार्टनर्स, द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर विड्रॉइंग हाफ द गुडविल. अगर विड्रॉ नहीं करेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गुडविल को रिसीव करके डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आएंगी. लेकिन अगर गुडविल विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ की एंट्री भी हमारी आएंगी. बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को, बिकॉज एंटायर सेशन यू कैन सी हर क्वेश्चन में आपको काफ़ी लर्निंग हो रही है एंड गोइंग टू बी वेरी वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. यहीं से आपका एडमिशन का बेस रखा जाएगा. तो न्यू पार्टनर सोहन न्यू पार्टनर सोहन क्या लेकर आए हैं, कैपिटल एंड प्रीमियम बोथ इन द फॉर्म ऑफ न्यू पार्टनर सोहन is joining for 1/4 share and he is bringing following assets. यानी कि स्टॉक लाए हैं 60,000 रुपीज. तो हमने क्या बताया था आपको जर्नल एंट्रीज करने के टाइम पर, हाउ टू सॉल्व द जर्नल एंट्रीज. लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले एक बार आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो कि पार्टनर का गुडविल कितना है और कैपिटल कितना है, विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू पास द एंट्रीज विद कॉन्फिडेंस. ओके, सो स्टॉक हमारा लेकर आए हैं पार्टनर 60,000 रुपीज का. डेटर्स पार्टनर लेकर आए हैं हाउ मच अमाउंट, 80,000. एंड लैंड कितना था इसमें, व्हाट वाज द लैंड ही ब्रॉट, 1 लाख रुपीज. एंड हाउ मच ऑफ द प्लांट एंड मशीन वाज देयर,
इट वॉज 40,000. ओके, तो 140, 80, 220 एंड 2,80,000. दिस इज वॉट ही ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम, दोनों चीजें इसमें है, राइट. अब हमें नहीं पता इसमें कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितना है, लेकिन हमारी हेल्प करने के लिए क्या दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म. तो अब फर्म की गुडविल में से अगर हम नए पार्टनर सोहन की गुडविल का शेयर निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि इस 280 में कितना प्रीमियम का शेयर है और बाकी बचा कैपिटल का शेयर है. तो सोहन का जो शेयर ऑफ प्रीमियम है, शेयर ऑफ गुडविल है, वो कितना है. दिस इज द रफ वॉर गोइंग ऑन, दैट इज आई एम राइटिंग GW. सो गुडविल फर्म की गिवन है हमें 6 लाख. सोहन का हमारा शेयर है, इट इज 1/4. तो आप देख सकते हो कि 1,50,000 क्या है उसका गुडविल. तो इस 2,80,000 में से डियर चिल्ड्रन 1,50,000 तो क्या हो गया उसका प्रीमियम फॉर गुडविल. सिंपल टू अंडरस्टैंड, दिस इज प्रीमियम. और बाकी कितना बचा, 280 माइनस 150 करके देखें आप. 2,80,000 जिसमें कैपिटल प्रीमियम दोनों था, और हमें पता चल गया कि उसकी प्रीमियम 150 है. तो हाउ मच इज द कैपिटल ऑफ सोहन, यू कैन से विद कॉन्फिडेंस सोहन कैपिटल इज 1,30,000. तो अब आप क्लियरली देख सकते हो 1,30,000 कैपिटल है और हाउ मच इज द प्रीमियम 1,50,000. सो सिंपल. तो जनरल एंट्री करना बहुत इजी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, टू न्यू पार्टनर सोहन. सोहन लेकर आए कैपिटल और लेकर आए प्रीमियम फॉर गुडविल. अब सिंपल है, जो काइंड वाला कंसेप्ट था. अच्छा, इंस्टेड ऑफ कैश चिल्ड्रन, सॉरी, instead of cash we will be writing the name of the assets. I was in a great hurry to complete this question, so made it like this. Otherwise remember, instead of cash what we have to write, यही तो हमें समझना है इस क्वेश्चन में. स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट. कैश हम कब लिखेंगे, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो इट इज कैश. अदरवाइज सन्ड्री एसेट्स और द नेम ऑफ द एसेट्स. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, plant and machinery account debit. So all the assets name we will debit instead of cash or bank. बस यही डिफरेंस है काइंड में और कैश में. तो सोहन कैपिटल भी लेकर आए हैं, तो वी विल बी राइटिंग कैपिटल, एंड पार्टनर लेकर आए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, वी विल बी राइटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल. दोनों चीजें लाए हैं पार्टनर. तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 60, 80, 1,00,000 एंड 40,000. एंड कैपिटल हमने निकाली है, राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो 1,30,000. और प्रीमियम कितना है इनका 1,50,000. बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन काइंड. यहाँ आपके माइंड में होगा व्हाट विल बी द नरेशन, बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन काइंड. ओके, दिस इज द फर्स्ट एंट्री विद नरेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, आफ्टर दिस चिल्ड्रन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एंट्री. प्रीमियम जैसे ही आता है क्या कर देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट. तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स, द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यू कैन से राम एंड मोहन. यहाँ पर रेशो में कोई ट्विस्ट नहीं है, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट द होल राम एंड मोहन कैपिटल अकाउंट. आई विल नॉट राइट द शॉर्ट फॉर्म, आई विल ट्राई टू अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स. तो 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अब आप जल्दी से इसको 3:2 के रेशो में 5, 90 एंड 60. प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब फर्स्ट केस में तो हमारा विड्रॉ कर ही नहीं रहा, लेकिन सेकंड केस में वो विड्रॉ कर रहा है. तो फर्स्ट केस में तो एंट्री बस यही आकर रह जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना था हमने. सेकंड केस में वो विड्रॉ भी करने के लिए कह रहा है, और वो भी हाफ. तो गुडविल कितनी मिली थी इन्हें, 90 एंड 60, इसका हाफ हम विड्रॉ करेंगे. तो विड्रॉ की एंट्री अभी मैंने आपको बताई है इन द प्रीवियस क्वेश्चन. राम एंड मोहन कैपिटल को क्या कर देंगे हम, डेबिट, क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो जाएगी विड्रॉ करने के लिए. व्हाट शैल बी द एंट्री, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. अच्छा, गुडविल तो उन्हें काइंड में मिली थी, राम मोहन हो गया हमारा ये. सो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन विड्रॉ करेंगे वो कैश में ही. उतना कैश वो फॉर्म से या बैंक से विड्रॉ कर लेंगे जितना उनको मिला था उसका 50%.
व्हाट इज द 50% ऑफ 90,000? 45. क्वेश्चन में लिखा है हाफ, और 60 का हाफ 30,000, एंड दैट दे विल विड्रॉ फ्रॉम द फर्म बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। विड्रॉ की एंट्री वही रहेगी विच वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉन्सेप्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हम लास्ट में कर रहे हैं बिकॉज आफ्टर दिस you will be the most confident student because this is going to be the hot question. Okay, the higher order thinking skill based question, बड़ा ही आसान पड़ेगा लेकिन समझने में आपको। अनु एंड भगवान आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:1. Goodwill appeared in the books at 4,40,000. Old goodwill को क्या करते हैं? Write off. Old partners में Raja was admitted into the firm. The new ratio among Anu and Bhagwan and Raja, तीनों पार्टनर्स का रेशो कितने पर एग्रीड हो गया? 2:2:1. And whensoever the new ratio is given, it is mandatory to calculate sacrificing रेशो। यहां अलर्ट आ गया आपके लिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। राजा ब्रॉट करते हैं 1,00,000 रुपीज एज एस कैपिटल और बोलता है नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, रिक्वायर्ड कैश को गुडविल में भी लाए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,50,000, तो उसका रिक्वायर्ड शेयर जो भी होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल में से, इसके फर्म की गुडविल से। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन करा था 29, यहाँ वो हमें लग रहा था कि इससे जर्नल एंट्री पूछ रहा है, मगर जर्नल एंट्री हम बोले पास द जर्नल एंट्रीज, आगे तो नॉर्मल लिखा होगा इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, लेकिन क्या लिखा हुआ था? शो द कैपिटल अकाउंट्स। देखो ध्यान से पढ़ना चाहिए फॉर द पार्टनर। फिर बाद में एक और क्वेश्चन पूछा कि रेशो भी निकालो, तो ऑलवेज रीड टिल द लास्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज एवरी क्वेश्चन डिसाइड योर करियर। So here we come to the last concept of the session, that is when any of the partner gains, who is the old partner. So 27th question फटाफट समझ लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो से ही शुरू करेंगे। मैंने बताया आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो अनु का ओल्ड शेयर कितना है और भगवन का ओल्ड शेयर कितना है। तो लेट अस सी, अनु ओल्ड शेयर वाज 3/4 एंड बागवन शेयर वॉज 1/4, और इनका माइनस कर देंगे न्यू शेयर 2/5 एंड 2/5। व्हाट वी गेट इज द अमाउंट ऑफ न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 15 minus 4 to the 8, that is coming 7/20, and 5 minus 8, it is coming -3/20। तो माइनस देख के हम कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस लैक नहीं करेंगे। माइनस के आने का मतलब है इट इज द गेन। तो भगवान ओल्ड पार्टनर जो है वो किसका शेयर गेन कर रहे हैं? अनु का। अनु इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर स्टूडेंट्स, तो शी इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इन दिस सिचुएशन डियर चिल्ड्रन, वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ टू हैंडल द situation when one partner sacrifices and another partner gains। यही है हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। और न्यू पार्टनर कौन बिजनेस में एडमिट हुए हैं हमारे? न्यू पार्टनर हु इज एडमिटेड इज राजा। तो राजा का भी हम शेयर निकाल के देख लेते हैं गुडविल का कितना था, जो उनको नेसेसरी गुडविल लाना था। राजा शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, दैट वी विल कैलकुलेट क्विकली। राजा का शेयर है फॉर्म के गुडविल में से 2,50,000 फर्म की गुडविल है, इसमें से राजा का शेयर होगा 1/5, दैट मीन्स 50,000 रुपीज, जो कि प्रीमियम वो कैश में लाए। इन दिस क्वेश्चन गुडविल हमें बुक्स में एग्जिस्टिंग करके दे रखी है 4,40,000, वहीं से हम क्वेश्चन का जर्नल स्टार्ट करेंगे। सो अनु एंड बागवन, they are the two partners, they will only write off the goodwill in their partners capital। जो ये एसेट को राइट ऑफ करने का जो डेबिट का बर्डन है वो यही दोनों बेयर करते हैं। तो अनु कैपिटल बागवन कैपिटल टू गुडविल ऑफ द फर्म विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इस गुडविल को क्या करना जरूरी है? वी हैव टू राइट इट ऑफ। तो बीइंग गुडविल प्रीमियम, नॉट प्रीमियम, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। हाउ मच गुडविल? 4,40,000। तो ओल्ड रेशो में करेंगे which will give you 3,30,000 and 1,10,000। Why old ratio? Because this is the old goodwill in 3:1 ratio।
दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड द गुडविल ऑफ द फर्म। बट एग्जामिनेशन में आपको इसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि इन विच रेशियो यू आर डिवाइडिंग इट। इन सिंपल जर्नल फॉर्मेट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल एंड प्रीमियम, सो बैंक अकाउंट डेबिट to Raja Capital and to premium for goodwill, to Raja capital account and to premium for goodwill account. So Raja की capital clearly mentioned है, how much capital of Raja is there, 1 lakh rupees receive कर लेंगे राजा से, and to premium for goodwill. Premium for goodwill you have just calculated 2,50,000 का आपने calculate करा था 1/5 which was coming 50,000 rupees. So 1,50,000 rupees we will receive total amount being premium and capital brought in cash. यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर है। अब एक न्यू पॉइंट जो आपने सीखना है वो यही है कि प्रीमियम को क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट, और कंपनसेशन किससे लेना है, फ्रॉम मिस्टर भगवन हु इज एक्चुअली गेनिंग इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस। तो ध्यान से समझना है अब जो एंट्रीज पास होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट सेम अमाउंट वी विल डेबिट, एंड हु इज एलिजिबल टू रिसीव दिस होल गुडविल, अनडाउटेडली अनु। हमारी एंट्री तो ये आनी चाहिए थी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अनुस कैपिटल, बट भगवान जिन्होंने उनका शेयर गेन करा था अनु का, वो भी अब ही इज बाउंड टू पे गुडविल टू द new sacrificing partner Anu. So Bhagwan will compensate according to his gain. According to his gain, Bhagwan will pay the amount of compensation. तो अब यहां पर आपको एक बात क्या बताई थी हमने जब कॉन्सेप्ट शुरू में सिखाया था, कि जो पार्टनर गेन करेगा, गेनिंग पार्टनर जो होता है हमारा, वो भी हमारा क्या हो जाता है, डेबिट, क्योंकि वो पे करता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है। तो गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिटेड व्हेन एवर हिज शेयर कम्स एज गेन इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस, किसी भी ओल्ड पार्टनर का। तो भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान अपनी कैपिटल से पेमेंट करेगा। हाउ मच ही विल कॉम्पनसेट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। भगवान विल कंपनसेट कितने पैसे, ध्यान से समझना है। भगवान विल कंपनसेट टू अनु फॉर द गेन अकॉर्डिंग टू हिज गेन, अकॉर्डिंग टू हिज गेन, ना कि ओल्ड या किसी और रेशो के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिज गेन। तो गेन कितना करा था उन्होंने, जस्ट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड गेन। अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो आपने गेन लिखा होगा 3/20। अब 3/20 ऑफ वॉट, 3/20 ऑफ वॉट, ऑफ द फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड है। कितने रुपीस की गुडविल फर्म की थी, 2,50,000 rupees. So if you calculate this, how much will it come, 12,500 multiplied by 3, 37,500. So 37,500 rupees he will be paying to the partner Anu for the gain made by him. So पूरा गुडविल जो 50,000 प्रीमियम लेकर आए पार्टनर राजा, वो भी मिलेगा, और 37,500 अकॉर्डिंग टू द गेन भगवान विल कंपनसेट, एंड टोटल मनी 87,500 partner will receive. So being premium for goodwill, premium and compensation by Bhagwan credited to Anu's capital account. Credited to Anu's capital. This is the narration. Credited to Anu's capital. हमने प्रीमियम और कॉम्पनसेशन दोनों क्रेडिट कर दिया इन द अकाउंट ऑफ अनु। यहां पर एक थोड़ी सी लर्निंग है, आई वॉन्टेड टू टेल यू। समटाइम्स यहाँ तो फर्म की गुडविल दे रखी है 2,50,000, अगर हमें ये अमाउंट डायरेक्ट दे रखा होता कि 50,000 ओनली ही ब्रॉड, तब हम किसका निकालते ये 3/20, क्योंकि वहां तो फर्म की गुडविल दे रखी है। यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि भाई 2,50,000 का हमें 3/20 निकालना है। तो अगर न्यू पार्टनर की प्रीमियम दे रखी है और पूरी फर्म की गुडविल निकालनी है, तो अगर फर्म्स गुडविल हमें नहीं दे रखी हो और उस सिचुएशन में गेन वाला आ जाए, तो फर्म की गुडविल कैसे निकालते हैं, प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर की प्रीमियम जो वो कैपिटल
जो वो लेकर आए न्यू पार्टनर का प्रीमियम इज इक्वल्स टू हिज शेयर इन प्रॉफिट। यानी कि अगर हमें 50,000 हिज शेयर इन प्रॉफिट, अगर हमको ये दे रखा होता कि कितना प्रीमियम वो फर्म की गुडविल नहीं दे रखी होती तो उसका प्रीमियम लेते और उसका शेयर उसके इक्वल्स टू कर देते। तो अगर हम 50,000 को 1/5 के इक्वल्स टू कर देंगे तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 2,50,000 आ जाती। लेकिन यहाँ तो दे रखी थी। तो अगर कभी भी फर्म की गुडविल ना दे रखी हो तो न्यू पार्टनर के प्रीमियम के इक्वल्स टू उसका शेयर कर दें, तो जो निकल कर आता है दैट इज फर्म्स की गुडविल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है, क्योंकि यहाँ तो गुडविल दे रखी थी, आपने पढ़े आराम से 3/20 अकॉर्डिंग टू हिज गेन यू हैव कैलकुलेटेड द कंपनसेशन मनी। बट प्लीज रिमेंबर कई कई बार क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी होती है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन के बाद एक एडिशनल क्वेश्चन ऐड करा है ऑफ द प्रीवियस पेज फ्रॉम योर बुक, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई डोंट रिमेंबर, इट इज 21 आई थिंक, सीम्स टू बी। तो B and C are partners sharing profit as 3:1. They admit D as a partner who brings 15,000 premium for 1/3 share of profits. Okay. It is written that he is coming for 1/3 share, partners D is coming, and B और C ने कहा they agree to share the future profits and losses equally. Means future में तीनों equal share करेंगे. Draft journal entry showing appropriation of premium money. क्वेश्चन नंबर 21 देखने में तो 2 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन करने में थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट लग रहा है कि पार्टनर 15,000 गुडविल ला रहा है और न्यू रेशो दे रखी है इक्वल, यानी कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि किसका सेक्रीफाइस है और किसका गेन है। तो 21 क्वेश्चन भी इसके साथ साथ आप समझ सकते हो, although you should try yourself, but old ratio हमें दे रखा है 3:1। ओल्ड रेशो इज गिवन 3:1 बी और सी का, और न्यू रेशो न्यू पार्टनर है हमारा डी, डी आ रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, और ये एग्री होता है कि न्यू रेशो इन तीनों पार्टनर्स की कितनी रहेगी, 1:1:1। So old ratio is given and new ratio is given. Both the ratios are given. What we need to calculate? Sacrificing ratio. तो बताइएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे बी और सी की, फटाफट देख लेते हैं। 3/4 ओल्ड, 1/4 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो गिवन है 1/3 1/3। इफ आई कैलकुलेट चिल्ड्रन यू विल फाइंड 9 - 4 5/12, एंड यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 - 4 -1/12। माइनस आते ही आपको अलर्ट मिल गया कि क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन निकालना पड़ेगा किसका, सी का, क्योंकि सी ने गेन करा है किसके शेयर को, बी को, बी से शेयर को गेन करा है, तो सी विल कॉम्पनसेट टू बी फॉर द गेन मेड बाय हिम। अब यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, यहीं पर ही मैं आपको सारी एंट्रीज करके समझा देता हूँ। फर्स्ट एंट्री हमारी आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर लेकर आ रहे हैं कितना कैश। देखिएगा 3 मार्क का क्वेश्चन और पूरी पावर है क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने की। सीम्स टू बी एन इजी क्वेश्चन, बट अगर बच्चे से करने को कहा जाए और एग्जामिनेशन में स्पेशली, तो कंफ्यूजन के चांस पूरे हैं हमारे इसमें। सो बी अलर्ट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को आप लगा के रखो, जब भी कभी न्यू रेशो दे रखी हो तो सेक्रीफाइसिंग मैंडेटरी है। अब सेकेंड एंट्री जो हमारी आएगी वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सो सिंपल, एंड हु एल्स डेबिट एंड व्हाई, सर सी इज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट, सी को भी डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज उसका नेगेटिव आया है, तो क्या हो गया, नेगेटिव आया है तो सर ही विल ऑल्सो कंपनसेट टू sacrificing partner, C will also compensate to sacrificing partner. Who is the sacrificing partner then? He is Mr. B. ओके, तो प्रीमियम कैश में आ गया, फर्स्ट एंट्री तो सिंपल हो गई थी हमारी, बट जो सेकेंड एंट्री है वो थोड़ी सी स्पेशल हो गई हमारी। व्हाट इज दैट, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 तो मिलना ही मिलना था बी को, बिकॉज बी इज द ओनली मैन हु इज सेक्रीफाइसिंग, बट सी विल कॉम्पनसेट। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि सी विल कॉम्पनसेट कितने पैसे, 1/12 तो वो कॉम्पनसेट करेगा अकॉर्डिंग टू हिज गेन, बट 1/12 किस चीज का, 15,000 का निकालोगे, दैट इज रॉन्ग। उसके शेयर में से शेयर तो निकाल नहीं सकते, किस में से शेयर निकालते हैं, पूरी फॉर्म की गुडविल से।
तो फर्म की गुडविल कितनी है ये तो हमें नहीं दे रखा, दैट इज नॉट गिवन। तो जस्ट नाउ ओनली आई एक्सप्लेन, अभी आप देखो 1 मिनट बिफोर ओनली आई एक्सप्लेन फर्म की गुडविल कैसे निकलती है। न्यू पार्टनर प्रीमियम इक्वल्स टू हिज शेयर इन प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर का प्रीमियम कितना है वो हम जानेंगे और फर्म की गुडविल निकाल देंगे 1 मिनट में। तो फर्म्स गुडविल, देखिएगा फर्म की गुडविल हमें नहीं दे रखी थी, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्म की गुडविल निकालने के लिए। तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है, 15,000 प्रीमियम लाए हैं। और कितने शेयर के लिए लाए हैं, फॉर व्हाट वाज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, व्हाट वाज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1/3। तो 1/3 मीन्स 45,000 इज द फर्म्स गुडविल। तो इसमें से सी विल कॉम्पनसेट, यहीं से आपको सी विल compensate according to his gain, according to his gain। देखिएगा अगर गुडविल ना दे रखी हो तो न्यू पार्टनर का प्रीमियम इज इक्वल्स टू उसका शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उसका क्या निकल कर आ जाए, फर्म की गुडविल निकल कर हमारी आ जाती है, विच इज ग्रेटली हेल्पफुल टू पास द करेक्ट एंट्री। अब आप देख सकते हो 1/12 के अकॉर्डिंग वी कैलकुलेट 1/12, 3 the 36 and 7 and 5 and 0. So 3750 rupees, the new partner, which is the C, the old partner who is the gaining partner, he will compensate according to his gain. 18,750 rupees partner B will get. So being premium for goodwill, credit हुआ है हमारा, being premium and compensation from C, who is the gaining partner, credited to B. Okay, this is how we will pass the journal entry and we will write the narration. So remember, this is very very important children। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड तक अगर हेल्प ना करे और आपके सारे टफ से टफ क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज रिमेंबर these concepts and practice as much as you can. Thank you. Stay blessed, stay safe. Thank you children.